Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, in our previous video, we have discussed how to create a database, how to create a table using design view as well as using wizard, and what are the various data types. In this video, we will discuss the next session of Unit 3, that is performing operations on the table. These are the various subtopics that we will cover in this video. How to insert the data in a table, this we have discussed in our previous video also. Editing records, how to delete the records, how to sort the data, what is referential integrity, how to create the relationship, and what are the various field properties. So now, without wasting our time, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो किस चीज का वेट करो, फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. So now let's start with our first topic, that is how to insert the data, how to edit the records and how to delete the records from the table. Let's do this practically. अब फटाफट से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं डिजाइन व्यू में. यहाँ पर हम फील्ड का नेम दे देते हैं. लेट्स सपोज फील्ड नेम इज रोल नंबर, डेटा टाइप इंटीजर, नेक्स्ट नेम डेटा टाइप varchar, एंड देन नेक्स्ट इज लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ. इसकी डेटा टाइप हमने दे दी है डेट, नॉट डेट एंड टाइम, ओनली डेट वी हैव टू सेलेक्ट, राइट. और नेक्स्ट है बच्चा मेरे पास मार्क्स. इसकी डेटा टाइप हम ले लेते हैं डेसिमल. तो ये मैंने कॉलम की नेम्स ली हैं एंड दीज आर द डेटा टाइप्स. अब इसको हम सेव करेंगे. लेट्स सपोज आई एम गिविंग द नेम ऑफ टेबल एज डेमो. इसको ओके पर क्लिक कर दोगे. प्राइमरी की भी सेट कर देते हैं. टू सेट द प्राइमरी की जस्ट सेलेक्ट द कॉलम, राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन प्राइमरी की. तो जैसे आप किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट करोगे तो उस कॉलम के आगे एज यू कैन सी स्मॉल येलो सिंबल आ गया की फॉर्म में. तो दैट मीन्स दिस कॉलम इज नाउ सेट एज द प्राइमरी की, राइट. So now just save this table and then click on the OK option, right? अभी आपकी टेबल यहाँ पर सेव हो गई है डेमो नेम से. And first point is to insert the record. It's very simple. This we have done in our previous video also. Just double click on the table. वो आपकी टेबल ओपन हो जाएगी. This is my data sheet view, जहाँ पर हम अपनी टेबल में डेटा को फिल करेंगे. रोल नंबर 1, नेम लेट्स सपोज नेहा, डेट ऑफ बर्थ आपका बच्चा आएगा पहले मंथ, फिर डेट and then year. This is the default format. So I'm writing month, then date and then year, right? And these are the marks. Let's suppose 99, roll number 2, name Nisha, 23, पहले month that means 3, then 23 and then let's suppose 2004. इस तरीके से marks let's suppose 100, right? So आप या फिर insert पे जाकर के record पर click करोगे तो then also you can insert the record, right? Roll number 3, name let's suppose Sonia and then 24, पहले month, then date and then year, right? अब marks हम fill कर देंगे let's suppose 75. So in this way you can insert the record in a table. Second आता है बच्चों edit. Edit means to modify the record. अब modify means मुझे उसमें changes करने हैं. First method is very simple, just click here. तो आपका ये blue select हो गया text. तो now you can update the record. Let's suppose from Nishat I want to change the name to Niharika. तो अब आपका ये change हो गया है. From here you can click on this option, save current record. और second method कौन सा है बच्चे, इसको select करके edit data. तो आपको जिसको edit करना हो ये highlight हो गया. तो now you can edit this record, right? So in this way you can do the updations. जैसे ही आपने इस edit पर click करोगे तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा. तो देन यू कैन डू द मॉडिफिकेशन. थर्ड आता है बच्चों हमारे पास टू डिलीट द रिकॉर्ड. अब डिलीट करने के लिए आइदर यू कैन डिलीट दैट पर्टिकुलर सेल, मींस उस सेल की वैल्यू को डिलीट करना है या कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, राइट. नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट द 75. इसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन. तो मेरी जो वैल्यू है उस रिकॉर्ड में उस सेल में दैट गेट्स डिलीटेड. नाउ अगर कंप्लीट रिकॉर्ड ही डिलीट करना है जस्ट सेलेक्ट दैट एंड डिलीट रोज. अब उसके बाद डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा? यस.
तो जैसे हम यस पर क्लिक करेंगे तो थर्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरा डिलीट हो चुका है। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली तो क्या करोगे, फर्स्ट रो को क्लिक करोगे, उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करनी है बच्चों, राइट। कौन सी की प्रेस करोगे, कंट्रोल की। फर्स्ट सेलेक्ट दिस रो, अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर रखी है, देन सेकंड रिकॉर्ड, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट डिलीट रोज ऑप्शन। डू यू वांट टू डिलीट सेलेक्टेड डेटा, यस, तो आपकी जो दोनों की दोनों रोज है वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फील्ड्स की प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं। अब फील्ड प्रॉपर्टीज मींस, फील्ड मींस कॉलम का नेम, जो आपका कॉलम डिफाइन किया आपने। अब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू फिल द नेम, उस नेम में मैं कैरेक्टर्स की लिमिट स्पेसिफाई कर सकती हूँ। डेट ऑफ बर्थ अगर मैंने लिया है डेटा टाइप डेट, तो उसके मैं फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स इन दिस वे वी कैन सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड। अब टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, आपको जो अपनी टेबल है यू हैव टू ओपन इट इन द डिजाइन व्यू, और टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करने के लिए टेबल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड देन वी विल सेलेक्ट द एडिट ऑप्शन। अब उसके बाद आपकी जो टेबल है दैट विल गेट ओपन इन द डिजाइन व्यू। फिर हम जो नीचे आपका बॉटम में प्रॉपर्टीज गिवन होंगी, फ्रॉम वेयर वी कैन सेट द प्रॉपर्टीज। नाउ दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में फर्स्ट वन इज ऑटो वैल्यू। अगर आप ऑटो वैल्यू को यस पर सेट कर दोगे तो अपने आप से ही ये नेक्स्ट फ्रॉम 0 इट विल स्टार्ट। आप इसमें वैल्यूज नहीं फिल करोगे, राइट। तो सपोज सबसे पहले ये 0 ले लेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा, फिर 2 ले लेगा, फिर 3 ले लेगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज को सेट कर देगा। तब अगर आप इस प्रॉपर्टी को क्या सेट कर दोगे, यस। नेक्स्ट है बच्चों लेंथ प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट जो लेंथ हर एक फील्ड की क्या होगी, 10, मींस मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स इट कैन एक्सेप्ट इन केस ऑफ न्यूमेरिक डेटा, बट द साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ। डिफॉल्ट वैल्यू मींस a default value can be set for a field if a user don't provide any value। अगर यूजर उस कॉलम में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वैल्यू ही पिक करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, राइट। तो अगर मैं कोई वैल्यू खुद से प्रोवाइड कर रही हूँ तो देन इट विल कंसीडर दैट वैल्यू, एंड इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू फॉर दैट कॉलम तो देन इट विल कंसीडर द डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेट मीन्स आपको किसी चीज का फॉर्मेट सेट करना हो, करेंसी का या कुछ डेट एंड टाइम का, तो देन वी कैन यूज दिस फॉर्मेट ऑप्शन, और यू कैन से फॉर्मेट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कैरेक्टर डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज एंट्री रिक्वायर्ड। अब एंट्री रिक्वायरमेंट मीन्स अगर मैं किसी कॉलम की प्रॉपर्टी में एंट्री रिक्वायर्ड में यस सेट कर दूं तो मैं उसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, राइट। अगर मैंने एंट्री रिक्वायर्ड नो सेट कर रखा है तो उसकी मैं बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू मींस ब्लैंक अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो दैट वी कैन डू, बट अगर मैंने एंट्री रिक्वायर्ड को यस सेट कर दिया है तो देन इट विल बी मस्ट टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड विच मींस दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अगर एंट्री रिक्वायर्ड नो सेट कर रखा है तो आप उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हो। नेक्स्ट लेंथ सेम है बच्चों, डिफॉल्ट वैल्यू भी सेम है। अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन द टेबल। मीन्स कि अगर यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर नहीं करनी है तो डिफॉल्ट वैल्यू इट विल टेक, अदरवाइज जो वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा इट विल कंसीडर दैट वैल्यू। फॉर्मेट भी सेम है आपका। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। अब इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। अब इस डेमो टेबल पर ही वर्क करते हैं, राइट क्लिक एंड देन एडिट। अब ये आपका ओपन हो गया बच्चों टेबल आपकी डिजाइन व्यू में, राइट। अब ध्यान से देखो, इस रोल नंबर को इंटीजर है ऑटो वैल्यू, यहाँ पर मुझे बॉटम में यहाँ पर प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। इंटीजर के केस में ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी है और टेक्स्ट वारकेयर के केस में आपकी एंट्री रिक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी है। अब ऑटो वैल्यू क्या सेट हुआ हुआ है, नो, इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज यस, ठीक है। तो अब इसकी ऑटो वैल्यू सेट हो गई। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी आएगी बेटा राइट साइड पर। लेंथ लेट्स सपोज 10 ही दे देते हैं। फॉर्मेट हमने इसका सेट नहीं करना। नेम टेक्स्ट डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट, अगर देखो मैं इंटीजर की बात करूं, इंटीजर में लेंथ बाय डिफॉल्ट कितनी है, 10 कैरेक्टर्स इट विल टेक। नेम अगर मींस डेटा टाइप वारकेयर है तो बाय डिफॉल्ट लेंथ कितनी है 50, कि मैं मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स तक इसमें एंटर कर सकती हूँ। नाउ लेट्स सपोज मैंने एंटर किया 6, कि 6 से ज्यादा मैं कैरेक्टर्स एंटर नहीं कर सकती, राइट।
इसका मैंने एंट्री रिक्वायर्ड भी क्या सेट कर दिया, यस, कि मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, राइट। अब डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर एक हम कॉलम और ऐड कर लेते हैं बच्चों, स्ट्रीम टेक्स्ट हमने ले लिया varchar, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी लेट सपोज मेडिकल, कि अगर कोई हमने वैल्यू एंटर नहीं कर रहा है स्ट्रीम कॉलम में तो इसको हमने क्या सेट कर दिया, नॉन मेडिकल, राइट। तो अब इसको एंट्री रिक्वायर्ड नो है, दैट मीन्स अगर हम चाहें तो डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया एंट्री रिक्वायर्ड यस, कि हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, राइट। इसको हमने कर दिया लेट सपोज डेट ऑफ बर्थ को एंट्री रिक्वायर्ड नो, कि ब्लैंक छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज हमने यहाँ पर फॉर्मेट अगर हमने इसका सेट करना हो इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा बेटा, राइट। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस, ठीक है। अब ये डेट कैटेगरी है, इसमें ये सारे इसके फॉर्मेट्स हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये वाला सिलेक्ट है बच्चे, मंथ, डेट एंड देन ईयर, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लेट सपोज हमने लिखा 31.dec.1999, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी फॉर्मेट जो आपने सेट करना हो, लेट सपोज दिसंबर 31 सिर्फ चाहिए, इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, ओके, राइट। तो अभी आ गया Jan 01, तो इस अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट क्या हो गया, सेट हो गया है। इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। प्रॉपर्टीज एक बार चेक करते हैं हमने किस पर कौन सी अप्लाई की है, रोल नंबर पर ऑटो वैल्यू सेट की है, दैट मीन्स अपने आप ये नेक्स्ट वैल्यू लेगा। नेम में हमने लेंथ में 6 सेट की है, इसकी हम 6 से ज्यादा कैरेक्टर्स भी डाल करके चेक करेंगे। और एंट्री रिक्वायर्ड यस है, मीन्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जिसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं वो मैंने कौन सा लिया है, एंट्री रिक्वायर्ड, एक ब्लैंक भी लिया था आई थिंक दिस वन, जो आपका मार्क्स का कॉलम है, राइट। अब इसमें हम टेबल में डेटा फिल करेंगे। अब देखो ऑटो फील्ड आ गया रोल नंबर में, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं फिल करनी है। आप यहाँ नेम पर क्लिक करोगे, नेम में मैंने लेट सपोज एंटर किया निशा। अब इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 है, तो दैट मीन्स ये एक्सेप्ट कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने लेट सपोज लिखा 23 मार्च। अब देखो इसको ये अपने आप ही चेंज कर देगा, मुझे इसको फॉर्मेट देना पड़ेगा मार्च एंड देन 23, तो इसने इस फॉर्मेट में जो है वो डेट एक्सेप्ट कर ली। ये स्ट्रीम में नॉन मेडिकल आ रहा है बच्चों बाय डिफॉल्ट, कि अगर आपने चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। अब मार्क्स में हमने फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी सेट की है, एंट्री रिक्वायर्ड नो, दैट मीन्स इफ आई वांट तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकती हूँ। तो अब मैंने नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, राइट। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, देखो रोल नंबर अपने आप सेट हो गया 0। अब इसको मैंने नेम फिल करा, निहारिका करते हैं लेट सपोज, राइट। अब इसकी लेंथ 6 कैरेक्टर से ज्यादा है, यहाँ पर हमने लिख दिया लेट सपोज दिसंबर 9, इसके मार्क्स हमने लिख दिए 52, स्ट्रीम हमने लिख दी मेडिकल, राइट। अब ये मुझे एरर देगा, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वैल्यू टू लॉन्ग इन स्टेटमेंट, कि आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो काफी बड़ी है। किसमें बड़ी है, निहारिका वाले नेम में, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम लेंथ सेट की है वो कितनी होनी चाहिए, 6 कैरेक्टर्स, तो इसमें आपके 6 से ज्यादा है, राइट। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहो तो जो आपका मार्क्स कॉलम है इसमें भी एक मार्क्स पे गए एडिट, यहाँ पर डेसिमल में 0 है, इसको लेट सपोज मैंने सेट कर दी डेसिमल प्लेस 2, कि आफ्टर डेसिमल ये सिर्फ 2 डिजिट ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। इसको हमने सेव कर दिया यहाँ से। अब टेबल को ओपन करेंगे, अब देखो यहाँ पर, राइट। अब सपोज मैंने यहाँ लिखा 25 पॉइंट दिस, ये डिजिट डाल दी, एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस तक ही डिजिट लेगा, राइट। सो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गए। अब मिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मीन्स अपने डेटा को अरेंज करना आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उसके लिए आपने क्या करना है, टेबल ओपन करेंगे, सपोज यही 2 नेम से इसको मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर नेम लेट सपोज ऋतु, यहाँ पर हमने डेट लिख दी लेट सपोज सितंबर 4, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको रिकॉर्ड को सेव कर दिया, राइट। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, इसको नेम को सिलेक्ट करोगे, दिस इज योर Z2A मींस डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। अब ऋतु का पहले आ गया, वापस असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना दिस वन, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी बाकी डिटेल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नाउ सी द डेफिनेशन, referential integrity is used to maintain the accuracy
एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम अपने 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो एक्यूरेट रहेगा, प्लस उसमें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। अब कंसिस्टेंसी किस तरीके से मेंटेन रहेगी, दैट आई विल टेल यू प्रैक्टिकली। इन ओपन ऑफिस बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 or more tables with the help of primary key and foreign key constraints। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होते हैं, ये आई होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो, माय प्रीवियस वीडियो, द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम टेबल्स को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, राइट। इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से किस तरीके से इसमें आपकी हेल्प करता है। अभी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। दिस वन कि we are having 3 basic types of relationships between tables, 1 to 1, 1 to many, many to 1, or you can say many to many। अब 1 to 1 relationship में क्या, in this relationship both the tables must have the primary key columns। ये कंडीशन आपकी हर एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप के लिए मैटर करेगी। विदाउट तो प्राइमरी की यू कैन नॉट इवन क्रिएट योर टेबल ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट नेम से टेबल है, यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट आईडी लिखी हुई है P01020304। यहाँ पर प्रोजेक्ट के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास अपनी क्लास का डेटा है, रोल नंबर्स मेंशन है, नेम्स मेंशन एंड क्लास मेंशन है, राइट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, एक स्टूडेंट को मैं एक ही प्रोजेक्ट असाइन करूंगी। अगर आप चाहे इसको इस तरीके से देखो, मीन्स लेफ्ट टू राइट, एक प्रोजेक्ट में एक ही स्टूडेंट को असाइन करूंगी। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप हो गया, 1 to 1 रिलेशनशिप। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, एक स्टूडेंट को मैं एक ही प्रोजेक्ट असाइन करूंगी, या एक प्रोजेक्ट में एक ही स्टूडेंट को असाइन करूंगी, वन एंड द सेम थिंग। तो इसमें जो आपका रिलेशन है वो 1 to 1 है। इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपका कॉमन कॉलम का नेम है, एक कॉलम आपका दोनों, जब भी हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे तो दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यूज आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। इसी कॉलम के थ्रू हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पर कोई भी वैल्यूज आपके रिपीट नहीं होंगी, रोल नंबर ना इस कॉलम में ना इस टेबल में, राइट। ये आपका होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। अभी प्रैक्टिकली भी करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है मेरे पास 1 to many रिलेशनशिप, 1 एक की एक से ज्यादा, राइट। अब इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम, एक टेबल में आपका प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। इट सिग्निफाइज दैट कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल is associated with all the columns of associated table। एग्जाम्पल देखो बच्चों इसका, मेरे पास एक ये टीचर नेम से टेबल है, टीचर आईडी है और टीचर के नेम्स मेंशन है। अब सेकंड टेबल है मेरे पास, रोल नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स के नेम है, क्लास है और टीचर की आईडी है, राइट। अब जो 101 1023 टीचर आईडी, अब ये आपका डिफरेंट हो सकता है, मीन्स ये कॉलम नेम इधर टीचर आईडी है और इधर ये टीचर है, दैट वी कैन डू, ठीक है। बट इसमें जो वैल्यूज होंगी वो मैच करनी चाहिए। अब ये मेरे पास 1 to many रिलेशनशिप है, मीन्स एक टीचर, दिस सपोज जीत, ये काफी सारे स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, राइट। तो 1 to many रिलेशनशिप हो गया, एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अगर मैं रिवर्स कर दूं, इस स्टूडेंट वाली टेबल को इधर ले आऊं, टीचर वाली टेबल को इधर ले जाऊं, तो वो आपका many to one रिलेशनशिप बन जाएगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। तो देन इट विल बी many to one। और 1 to many करना हो तो एक टीचर है तो दैट इज टीचिंग टू many स्टूडेंट्स। तो वहां पर इस तरीके से हम 1 to many और many to one रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है many to many रिलेशनशिप। इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। many to many रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम 3 टेबल्स चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। प्लस अब आप इसमें ध्यान से देखो, जो हमारी सेकेंड वाली मिडल टेबल है, इसके जो कॉलम्स है, एक सब्जेक्ट आईडी और एक टीचर आईडी, एक कॉलम आएगा मेरा इस टेबल से और एक कॉलम आएगा मेरा इस टेबल से। मीन्स ये दोनों मेरी सेपरेट टेबल है, एक टीचर की टेबल है, टीचर आईडीज लिखे हुए हैं, टीचर के नेम्स लिखे हुए हैं। इधर टीचर और सब्जेक्ट की, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इस सब्जेक्ट की आईडीज है। यहाँ पर सब्जेक्ट की टेबल है कि कौन से सब्जेक्ट की आईडी है तो उसका सब्जेक्ट का नेम क्या। अब एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, लाइक सेम टीचर कैन टीच हिंदी एंड संस्कृत, सेम कैन टीच इंग्लिश एंड एसएसटी आल्सो, राइट। तो अब यहाँ पर लेट्स सपोज दिस टीचर बेला, ये आपका पढ़ा रही है S04 सब्जेक्ट।
अब S04 की आईडी आप यहाँ से चेक करोगे, साइंस पढ़ा रही है, ठीक है। अब इस रेड वाले जो हाईलाइट है कंवलजीत, यहाँ पर ये S01 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, S03 भी पढ़ा रहे हैं। ये तो हो गया वन टू मैनी, और इधर मैनी टू मैनी या मैनी टू वन, तो ये आपका कंबाइन होकर के कौन सा रिलेशनशिप बन जाता है, मैनी टू मैनी, राइट। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। We can create a relationship between any two tables and even more than two tables, many to many के केस में, by selecting the relationship option from the tools menu. That means पहले मुझे tools menu पर जाना है, relationship options पर क्लिक करना है, तो then we can add the table जिसके बीच में मुझे relationship को define करना है, right? अब let's suppose हम one to one relationship define करते हैं पहले। इसमें मैंने tables already पहले से define करके, create करके values इंसर्ट कर रखी है, सो दैट यहाँ पर अब सिर्फ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट नेम की टेबल को अगर मैं ओपन करूं तो देयर वी आर हैविंग द प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम एंड देन रोल नंबर, ठीक है। अब इसमें मैंने एक को प्राइमरी की सेट कर रखा है, वो आपने चेक करना हो, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करेंगे, एडिट, तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की सेट कर रखा है, राइट। अब सेकेंड टेबल है मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम से, यहाँ पर क्या है, रोल नंबर, नेम और क्लास। यहाँ पर भी रोल नंबर को मैंने क्या सेट कर रखा है, प्राइमरी की, राइट। अब रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू एंड देन फ्रॉम हियर यू हैव टू सेलेक्ट द रिलेशनशिप ऑप्शन। ये पहले से ही डिफाइन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो ये आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, राइट। इसको सेव करना है, लेट्स डू इट अगेन। टूल्स पर क्लिक करोगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रिलेशनशिप बटन। अब यहाँ पर ऐड टेबल्स, यहाँ पर वो सारी टेबल्स आएंगी जो आपने डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अब मुझे डिफाइन करना रिलेशन प्रोजेक्ट में, इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दोगे, एंड देन स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको सिलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, ऐड, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। इसको आप यहाँ से ड्रैग करके इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गई टेबल, ये मेरी प्रोजेक्ट रिकॉर्ड हो गई, प्रोजेक्ट टेबल, राइट। आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, जिस कॉलम के, जो कॉलम सेम है मेरा दोनों टेबल्स के बीच में, उसके थ्रू ड्रैग करना है। मींस मैं यहाँ से रोल नंबर को सिलेक्ट करके इस वाले रोल नंबर तक लेकर जाऊंगी, राइट। इसको फिर छोड़ दो। अब मैं इसको थोड़ा सा जस्ट शिफ्ट कर देती हूँ, तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियरली, ये मेरा वन टू वन रिलेशनशिप अब डिफाइन हो गया। मींस एक प्रोजेक्ट में एक ही स्टूडेंट को असाइन कर सकती हूँ। और इसकी कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, दोनों टेबल्स में जो रोल नंबर के वैल्यूज हैं वो मेरे रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो अदरवाइज वो आपका वन टू वन रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा, राइट। और रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए सिंपली जस्ट सेलेक्ट दिस मिडल लाइन, और आप इसके बाद इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके डिलीट, राइट। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो डिलीट हो गया। टेबल्स डिलीट करने के लिए राइट क्लिक, सेलेक्ट, डिलीट, राइट क्लिक, सेलेक्ट, डिलीट, राइट। अब इसको हम वापस से सेव करना है, यस। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। आपके जो सीबीएसई का मटेरियल है उसमें प्रैक्टिकल इतना डिफाइन नहीं है डीप में, बट वन टू वन और वन टू मेनी आई विल टेल यू दिस प्रैक्टिकली। अब उसके लिए हम यहाँ पर लेट सपोज एक स्टूडेंट टीचर नेम से टेबल है, टीचर आईडी 103, सिर्फ एक टीचर के लिए डिफाइन कर रखा है 103, और एक मैं अपनी टेबल ओपन कर रही हूँ, इसमें सिर्फ क्या रोल नंबर्स है, नेम है स्टूडेंट्स के, क्लास है, टीचर आईडी है, ठीक है। टीचर आईडी 103 है हर एक में। अब मैं आपको टीचर टेबल ओपन करके दिखाऊंगी दिस 103। अब ये वन टू मेनी क्रिएट हो जाएगा, मींस एक टीचर जो है 103, जो सेकेंड टेबल है मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट टीचर नेम से, इसमें ये वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो एक टीचर सभी को पढ़ा रहा है, वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो दैट मीन्स इट विल क्रिएट योर वन टू मेनी रिलेशनशिप। और प्राइमरी की मैंने किस में सेट कर रखा है, इस टेबल में रोल नंबर को, और इस टीचर वाली टेबल में टीचर आईडी को। इफ यू वांट टू चेक, राइट क्लिक करोगे, एडिट पर जाओगे, जिस कॉलम के आगे वो की बनी हुई आ जाएगी, दैट मीन्स यू हैव सेट दैट कॉलम एज द प्राइमरी की। नाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप वी हैव टू क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू, रिलेशनशिप पर जाओगे। अब हम सेलेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट टीचर एंड देन दिस टीचर टेबल, इसको क्लोज कर दो। इसको हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं सो दैट इसके कॉलम्स मुझे अच्छे से दिख जाएं, राइट। नाउ सी दिस, अब मुझे रोल नंबर को नहीं ड्रैग करना बच्चों, कौन सा कॉलम सेम है दोनों टेबल्स में, टीचर आईडी।
अब टीचर आईडी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी हूँ, इस स्टूडेंट वाली टेबल में वो वैल्यूज रिपीट हो रही थी, राइट। इसको आपने इस टीचर आईडी के साथ मैच करना है। तो अब इसको अगर मैं जूम करूं तो ये मेरा मैनी टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। मैनी स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पढ़ा रही है, मींस काफी सारे स्टूडेंट्स को एक ही टीचर टीच कर रही है। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज योर मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसी तरीके से अगर मुझे वन टू मैनी क्रिएट करना हो, वन टू मैनी मीन्स एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर दूं अपने इस रिलेशनशिप को, इस स्टूडेंट टेबल को यहाँ ले आऊं, ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों इसमें, राइट। अब एक टीचर है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका कौन सा रिलेशनशिप डिफाइन हो गया, वन टू मैनी। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, मैनी टीचर्स मीन्स मैनी स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा मैनी टू वन। इस टीचर टेबल को मैं लेफ्ट में ले आऊं तो एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से आप तीन टेबल्स को कंबाइन करके भी हम लोग जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सी दिस स्लाइड जो हमने बीच में स्किप कर दी थी बच्चों, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड। अब इसमें मुझे क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पॉइंट कि इट इज यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, वो किस तरीके से मेंटेन होगा, एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल, जो मैंने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया, इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी टेबल। मींस अब देखो, लेट सपोज हमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, ये डिफाइन है किस किस में, टीचर और स्टूडेंट टीचर में, राइट। इसी तरीके से अगर आप चाहो, ऐड टेबल्स पर गए हम लोग, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया डिटेल्स टेबल और एक मैंने सेलेक्ट कर दी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल, राइट। इसकी जगह हम सेलेक्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट वाली टेबल है, आई थिंक इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट पर जाओगे, ऐड टेबल्स एंड देन प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पर हमारा बन रहा है वन टू वन रिलेशनशिप। इस रोल नंबर को हमने इससे ड्रैग करके यहाँ पर मिला दिया, तो हियर आई एम गेटिंग माई वन टू वन रिलेशनशिप। इसको आप यहाँ पर क्लिक करके हम अपने रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज वी आर हैविंग दिस टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड प्रोजेक्ट, राइट। या किसी भी टेबल पर हम ये कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हैं। अब देखो, टीचर आईडी में वन टू मैनी रिलेशनशिप है, एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये टेबल ओपन करके दिखाऊं, स्टूडेंट टीचर 103 आईडी है इसमें, और एक मेरे पास है टीचर टेबल, राइट। अब इसमें से अगर मैं 103 आईडी वाली रो को 106 कर देती हूँ, ठीक है, इसको अपडेट कर रहे हैं, फिर सेव पर क्लिक करेंगे तो इट विल शो द एरर कि अगर मेरी की मीन्स टीचर आईडी की कोई वैल्यू, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, डिफाइन हो गया, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू चेंज नहीं कर सकती जिसका इफेक्ट मेरी उस टेबल पर पड़े, राइट। अब उसमें 103 है, तो ये 103 वाली को मैं ना चेंज कर सकती हूँ, ना ऐड कर सकती, अपडेट कर सकती हूँ, ना डिलीट कर सकती हूँ। अब ये 105 है, इसको मैंने 106 करा और सेव कर दिया, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया, ठीक है। रीजन बीइंग दैट ये जो 106 हमारा टीचर आईडी है, इसका इफेक्ट मेरी दूसरी टेबल पर नहीं पड़ेगा जिसके साथ मैंने इसका रिलेशन क्रिएट किया, राइट। रिलेशनशिप हमने किसका क्रिएट किया, 103 का, तो 103 को अगर आप डिलीट भी करना चाहो तो भी वो आपको क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। सेम ही आपका करेगा सेकेंड टेबल में, मींस जो हमारी स्टूडेंट टीचर वाली टेबल है, इस 103 की जगह अगर मैं 109 करूंगी तो देन इट विल गिव मी द एरर। क्यों, क्योंकि 109 टीचर आईडी हमारे पास है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका लिंक क्रिएट नहीं होएगा। बट अगर मैं 104 करना चाहूँ तो वो आपका विदाउट एनी एरर अपडेट हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम अपने डेटा में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं अपने इस टेबल में 106 का रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ या 107 का ऐड करना चाहूँ, जो उस टेबल में टीचर आईडी प्राइमरी की है वो मेरे पास 107 उसमें वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड नहीं कर सकती। 106 यहाँ पर नेम लिख दिया, लेट सपोज AAA, यहाँ क्लास लिख दी और ये 107, राइट। तो अब मेरे को यहाँ पर भी इस टाइम पर एरर मिलेगा। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन
कि 107 मेरे पास टीचर आईडी है ही नहीं, तो आपको एक तरीके से एक्यूरेसी भी मेंटेन कर रहा है प्लस कंसिस्टेंट भी मेरा डेटा रहेगा। 101 अगर मैं लूंगी तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए प्रैक्टिकली। चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल, कि जैसे हमने 103 की जगह 10 कुछ और ट्राई करने का किया था तो वो आपका अपडेट नहीं होगा। रीजन बीइंग दैट उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेरे पास जो टेबल उससे हमने लिंक कर रखी है उसमें ऑलरेडी है। सिमिलरली आप उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते जो हमारे पास ऑलरेडी जो टेबल हमने लिंक कर रखी है उसमें वो आपस में उसका रिलेशनशिप डिफाइन है। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो उसके लिए आपको पहले इनका रिलेशनशिप जो हमने डिफाइन किया वो डिलीट करना पड़ेगा, देन वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशंस, राइट। So these are the advantages of creating the relationship between tables. It saves time as there is no need to enter the same data in separate tables. दो टेबल्स में मेरे पास सेपरेटली डेटा है, वो सारा टेबल डेटा मुझे बार बार से दोबारा एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Reduce data entry error with the help of this constraint and it summarizes the data from the related table. जो भी हमारे रिलेटेड टेबल्स हैं उसके बीच में जो डेटा है मुझे समराइज्ड फॉर्म में ये मुझे रिटर्न करेगा, राइट। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स रिलेशनशिप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं, रिकॉर्ड्स में हम कैसे एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन करते हैं, these are all clear now. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.